Assalamualaikum. Welcome to Methodologics platform. This is Noma Khan, founding director of Methodologics. I welcome all of you at my platform. So, our today's session topic is encouraging debates in maths. In today's session, we will see different different debate style based activities and we will see how we can encourage our students to debate in maths class. So let's begin with our opening activity, which is activity 1, chalk and talk. And here we go. So before moving on our session content, I would like you all to write your thoughts, questions, examples on a paper. Okay, write about these questions. What is thinking? How do you see student thinking? What are your concerns, fears with facilitating students' discussion? And what does your ideal classroom look like? Take good 2 minutes to answer all these three questions on the slide. You can write your responses in comment box as well. Okay, let's move towards our today's session objectives. So today we are aiming to achieve these three objectives. The first one is we will try to explore ways to help students feel safe and prepared for classroom discussions. Second one is to give direct experience of talking structures you can use in your classrooms and to allow work time to help you implement ideas in your classrooms. Right? Okay, let's see today's session activities breakdown. So, we have three activities in our session's first half and three activities for the second half of our today's sessions. The activity one is talk and talk, which we have already done as an opening activity. Then second activity we have talking points, then debate. Then we will see some debate styles to start argumentative debate. First one is soapbox debate activity, second is circle debate, and the third one is table debate. Here are some common examples to start discussion in your maths class. First, you can ask your student to explain or justify their answers. Then you can use this what do you notice and what do you wonder technique. What you will do, just write a question or two questions on the board, then ask your students to notice the differences between those questions and ask them what wonder them about that particular questions. And the last one is talk and talk.
similar as activity number 1. Let's move toward second activity, which is talking points. In this activity, we will talk about a discussion or we discuss about a particular topic or question. Let's see how can we done this in our classrooms. So first of all, we have to make groups of 3 students, right? Each groups will have exactly 10 minutes to do as many rounds as they can do. इट्स मीन ये जो एक्टिविटी है वो डिफरेंट और मल्टीपल राउंड्स पे बेस करती है, जिसमें हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि अपनी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और हर ग्रुप को 10 मिनट्स का टोटल टाइम दिया जाएगा इस एक्टिविटी के राउंड्स को करने के लिए, और उन 10 मिनट्स में वो जितने ज़्यादा राउंड कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है. Then a teacher will provide a talking points or statement on the list receives 3 rounds of attention. It means आपने जो स्टेटमेंट्स या जिस भी पॉइंट पे आपने अपने स्टूडेंट से डिस्कशन करने के लिए कहा है उसके 3 राउंड होंगे. हर स्टेटमेंट के लिए 3 राउंड होंगे. Then for the first person reads the first statement aloud with no comment. आपके ग्रुप में इसको परफॉर्म करने का तरीका ये होगा कि ग्रुप से एक स्टूडेंट आपका फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करेगा और उस पर कोई कमेंट नहीं करेगा, राइट? देन देयर विल बी 3 rounds of speaking and listening. Similarly, as we do speaking and listening activity in literature or English language, we can use the technique in maths as well. So these rounds will be lightning rounds. Then talking statements are provocative. आपके स्टेटमेंट्स इस तरह होने चाहिए, जो स्टेटमेंट टीचर डिज़ाइन करेगा वो डिज़ाइन स्टेटमेंट इस तरह से होने चाहिए कि उसमें बच्चे सोचें. आप बच्चों की थिंकिंग को प्रोवोक करें, जिसमें उनकी कुछ प्रियर नॉलेज भी इन्वॉल्व हो और जिसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो. इस तरह के आपने टॉकिंग स्टेटमेंट्स बच्चों को प्रोवाइड करने हैं इस एक्टिविटी में, राइट? सो moving forward and let's see the 3 rounds of this activity. Okay, so there will be 3 rounds for each point. In first round, with each person saying in turn whether they agree, disagree or unsure about the statement made by someone. जैसे हमने पहले देखा पिछली प्रीवियस स्लाइड में कि हमने ये कहा कि इस एक्टिविटी में ग्रुप का एक स्टूडेंट एक स्टेटमेंट को रीड करेगा और उस पर कोई कमेंट नहीं करेगा. ग्रुप के जो बाकी 2 स्टूडेंट हैं वो उस स्टेटमेंट के बारे में अपना कमेंट देंगे कि वेदर दे अग्री, डिसअग्री और अनश्योर अबाउट दैट स्टेटमेंट, और फिर वो अपने आंसर को जस्टिफाई भी करेंगे. इवन इफ एनी स्टूडेंट्स will ensure about any statement, he or she must state a reason why they are unsure or they must justify their thinking, right? अगर कोई बच्चा किसी भी स्टेटमेंट के बारे में अनश्योर भी है तब भी आपने उससे वाई ज़रूर पूछना है कि अगर वो अनश्योर है तो क्यों है, क्या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या कॉन्सेप्ट के बीच में वो आपका स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज है, राइट?
यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को थोड़ी सी लिबर्टी दें कि अगर वो अपना आंसर, अपना ऑप्शन चेंज करना चाहें ड्यूरिंग द एक्टिविटी नेक्स्ट राउंड में, तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में किसी स्टेटमेंट से अग्री करता है तो वो दूसरे नेक्स्ट राउंड में उस स्टेटमेंट से डिसअग्री भी कर सकता है, राइट? नाउ इन राउंड 2, repeat the same process again, but इसमें क्या है, हर स्टूडेंट अपने स्टेटमेंट के बारे में, अपने जो उसने स्टेटमेंट रीड किया है, ओरिजिनल स्टेटमेंट जो था उस स्टूडेंट का, उसके बारे में बताएंगे कि वो अपने ही स्टेटमेंट से अग्री हैं, डिसअग्री हैं या फिर अनश्योर हैं, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करेंगे। देन अगेन इन राउंड 3, एग्री, डिसएग्री और अनश्योर की एक फाइनल टैली लिस्ट आप प्रिपेयर करेंगे, उससे नोट्स बनाएंगे, लेकिन उसमें आप कमेंट्स नहीं करेंगे, ठीक है? राउंड 3 के बाद जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन पे तीनों स्टूडेंट्स ने अपने रिस्पॉन्सेस दे दिए, अपने ओरिजिनल स्टेटमेंट पे भी रिस्पॉन्सेस दे दिए, उसके बाद आप मूव करेंगे, अपने स्टूडेंट से कहेंगे कि अब आप मूव कीजिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। यहाँ मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी इस एक्टिविटी को ग्रुप में करवाएं तो आप 5 बच्चों का भी ग्रुप बना सकते हैं, बट एटलीस्ट आप कम से कम हर ग्रुप को 3 स्टेटमेंट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें 5 स्टेटमेंट्स दीजिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, राइट? और अगर आप कर सकें तो आई वुड सजेस्ट कि अगर हर ग्रुप के स्टेटमेंट्स अलग होंगे और एक्टिविटी के एंड पे जब डिस्कशन होगी तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ नॉलेज जो हर स्टूडेंट एक दूसरे से भी सीख रहा होगा और अपने स्टेटमेंट से भी सीख रहा होगा। So let's move on. Third activity, which is to debate. अब यहाँ पे क्या है कि हमें पता है डिबेट कब शुरू होती है, जब काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हों, एक बंदा एग्री करे, दूसरा उसके स्टेटमेंट से डिसएग्री करे, तो वो एक आर्ग्यूमेंटेटिव डिबेट होती है। अब आर्ग्यूमेंटेटिव डिबेट, आर्ग्यूमेंट बनता कैसे, पहले हम ये देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट बनता कैसे, फिर हम उसकी 3 एक्टिविटीज़ देखेंगे कि कौन से 3 डिफरेंट स्टाइल की डिबेट्स हैं जिनके थ्रू हम आर्ग्यूमेंट्स करवा सकते हैं, और किस तरह से स्टूडेंट अपनी मैथमेटिकल थिंकिंग को, अपनी लॉजिकल रीजनिंग को अपनी डिबेट्स में यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स सी कि आर्ग्यूमेंट कैसे बनता है। So here you can see that argument is equals to claim plus warrant. एक argument में एक claim होता है और एक warrant होता है। तो argument क्या होता है? एक ऐसा statement जो एक sound reasoning के साथ बनाया जाए, और हर argument के 2 key parts होते हैं। कोई भी argument claim के बगैर incomplete होता है और कोई भी argument warrant के बगैर भी incomplete होता है। क्लेम इज योर स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, और वारंट उस क्लेम की जस्टिफिकेशन है। जैसे हमने स्टार्टिंग की स्लाइड्स में देखा था कि आप अपने स्टूडेंट से ये कहें कि वो अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करें या जस्टिफाई करें, तो दिस इज समथिंग सिमिलर टू दैट एज वेल, कि आपका स्टूडेंट जो भी स्टेटमेंट दे रहा है वो अपने स्टेटमेंट को वारंट दे के जस्टिफाई करेगा, और जो उसके अपोजिट स्टूडेंट है, इधर वो उससे डिसएग्री कर रहा है, तो वो भी अपने स्टेटमेंट को अपना वारंट दे के जस्टिफाई करेगा। जब स्टूडेंट्स अपनी स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करेंगे तो यहाँ पे टीचर जज कर सकती है उनकी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग को, कि बच्चों की कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कितनी अंडरस्टैंडिंग है, और उनके जो वारंट्स होंगे या उनका जो क्लेम होगा, अगर वो किसी की बात से डिसएग्री कर रहे हैं, तब यहाँ पे
थोड़ी सी जो है बच्चों की फॉर्मेटिव असेसमेंट भी हो जाती है। डिबेट्स के दौरान आप स्टूडेंट्स की फॉर्मेटिव असेसमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे आपस में डिबेट कर रहे हैं, अपनी क्लेम्स और वारंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहाँ आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा बच्चा किस कॉन्सेप्ट में स्ट्रांग है, किस बच्चा की वीकनेस किस टॉपिक में है या किस कॉन्सेप्ट में है, और कौन सा बच्चा कहाँ पर या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के किस पॉइंट पर कंफ्यूज है, राइट। Let's see how students will start this claim and warrant argument. So here student will state their statements by starting their sentence as my claim is and my warrant is. जब स्टूडेंट अपना स्टेटमेंट देंगे तो वो बताएंगे कि वो क्या क्लेम कर रहे हैं. So he or she is supposed to start their statement with my claim is and end or justify their statement by giving their warrant on the same statement which they have made. Let's see activity number 1, which is soapbox debate style. So the activity 1 is soapbox style. नेम, क्लेम प्लस वारंट. तो ये चीज़ हमने प्रीवियसली स्लाइड में भी देखी है कि क्लेम प्लस वारंट आर्ग्यूमेंट होता है, राइट. तो सोप बॉक्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स अपना नाम दें, पहले अपना नाम बताएंगे, फिर अपना क्लेम, और फिर अपने क्लेम को अपने वारंट से जस्टिफाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं. द बेस्ट मूवी इज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ टॉपिक इज़, dash is the best method for solving the system, y is equals to 2x and x is equals to y, right. अगर मुझे इस स्टाइल में अपना स्टेटमेंट देना है तो मैं ये कहूँगी कि this is Noma and my claim is the most important math topic is arithmetic operation, right. And my warrant is arithmetic operations is the most important because in every topic of mathematics all we have to do is addition, subtraction, multiplication and division. Either we are learning fractions, ratios and proportions, or any other topic or about percentages, all we have to perform there is addition, subtraction, multiplication and division, which are arithmetic operations. So my claim is the most important math topic is arithmetic operations. Right? Making sense? I hope it's quite clear. Or if you still have some confusion, you can ask in the comment, or you can ask me in person as well. So this is another way to start a debate or a discussion in your classroom. Here in the picture you can see the two solved questions, right. और यहाँ पे जो सवाल बच्चों के लिए है वो क्या है, विच प्रॉब्लम शोज द बेस्ट मिस्टेक. इससे भी बच्चों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है. जब आप उन्हें 2, 3 या 4 सवाल दे के उनसे पूछते हैं कि इन क्वेश्चन में बेस्ट मिस्टेक क्या है या इसको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड कौन सा है, तो उससे बच्चों की मैथमेटिकल थिंकिंग बढ़ती है. वो फिर क्रिटिकली दोनों क्वेश्चंस में मिस्टेक्स को ढूंढेंगे, और डेफिनेटली जब वो मिस्टेक्स को फाइंड आउट करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो जब वो खुद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे.
यहाँ पर भी आप बच्चों की फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं इस तरह से भी कि आप उनसे बेस्ट मिस्टेक पूछ लें, और आपको यहाँ पे भी एक अच्छा क्लास डिस्कशन आप यहाँ पे रेज कर सकते हैं इस मेथड से भी, और आपको आइडिया हो जाएगा, एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि कौन सा बच्चा कॉन्सेप्ट्स में किस लेवल पर है। Right? So let's see another way to raise a discussion or debate in your math classroom with our activity number 2, which is circle debate. Here we go. Yeah. Always, sometimes, or never. Right? This is activity number 2, and the debate style is circle debate. समराइज करना है, इसमें आप अपने स्टेटमेंट को समराइज करेंगे, अपना क्लेम देंगे और फिर अपना वारंट देंगे। राइट? किसी भी स्टेटमेंट से रिलेटेड या जो स्टेटमेंट आप अपने स्टूडेंट्स को देंगे उन स्टूडेंट्स पे सॉरी उन स्टेटमेंट्स पे स्टूडेंट्स को ये बताना है कि वो स्टेटमेंट जो है ऑलवेज ट्रू होगा, समटाइम्स ट्रू होगा या नेवर ट्रू होगा। I think there is a typing error. This is actually two. These are actually two statements. The first one is Max gets a pay raise of 30%, Jim gets a pay raise of 25%. So Max gets the bigger pay raise. तो इसमें आपको बताना है कि ऐसा हमेशा होगा अगर मैक्स की जो पे है वो बढ़ी है 30% और जिम की 25% पे रेज हुई है, तो क्या हमेशा ऐसा होगा कि मैक्स को जो है वो ज़्यादा पे, मैक्स की हमेशा ज़्यादा पे रेज होगी जिम से। राइट? Another statement is when you cut a piece of a shape, you reduce its area and perimeter. नेक्स्ट स्टेटमेंट कि जब आप किसी भी शेप को कट करते हैं या आप किसी भी पीस में से कोई शेप कट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मेरे पास रेक्टेंगल है 5x4 का या 4x5 का रेक्टेंगल है और उसमें से मैं एक 2x2 का स्क्वायर कट कर दूं, तो उसका जो एरिया और पैरामीटर है वो डिक्रीज होगा, सेम रहेगा या इंक्रीज होगा। तो इसमें आपको बताना है कि एरिया जो रिड्यूस हो रहा है वो कभी होगा, हमेशा होगा, या उसका पैरामीटर और एरिया उस शेप का रिड्यूस नहीं होगा। राइट? लेट्स हैव अ लुक on activity number 3, and obviously another style of debate which is table debate. Yes, so this is an example of a table debate. Here you can clearly see I wrote two statements with team A and team B. It's mean in table debates you have to divide your class into two teams, or you can name them team A and team B or any other name of your choice. It's up to you. Let's see how the students will perform this activity or how you can incorporate this debate style in your math classroom. So team A, it is better to solve by breaking the shapes into rectangles.
टीम ए का क्लेम है कि इस शेप को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है कि इस शेप को रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर दिया जाए, राइट। और टीम बी का क्लेम ये है, इट इज़ बेटर टू सॉल्व बाय फाइंडिंग द लार्ज रेक्टेंगल एंड सब्ट्रैक्टिंग द मिसिंग पीस। तो टीम ए ये कह रही है कि इस फिगर को सॉल्व करने का आसान तरीका यह है कि इसको रेक्टेंगल को जो है रेक्टेंगल्स में इसको ब्रेक कर दिया जाए। और टीम भी ये कह रही है कि बेटर सॉल्यूशन ये है कि हम इस होल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करें, या उसका सॉल्यूशन जो है वो हम एरिया या पेरीमीटर होल फिगर का फाइंड आउट करें और फिर उसमें से मिसिंग पार्ट के एरिया या मिसिंग पार्ट के पैरामीटर को हम सब्ट्रैक्ट करवा दें। तो ये बेस्ट सॉल्यूशन होगा इस गिवन फिगर के को सॉल्व करने का, या इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का, राइट। सो यू कैन सी कि हर इंसान अपने तरीके से सोचता है, अपनी सिचुएशंस में सोचता है, और बच्चे माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव होते हैं। हो सकता है कि इन रूटीन्स आप बनाएं, अगर आप सेम चीज़ अपनी क्लासरूम में परफॉर्म करें तो एक या दो स्टूडेंट्स ऐसे हों जो इन दोनों मेथड से हट के कोई और अपनी थिंकिंग के हिसाब से मेथड लेके आए, राइट। तो जब हम अपने क्लासरूम्स में डिबेट स्टार्ट करते हैं या जब हम मैथ्स डिबेट की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो मेन एम होता है वो यही होता है कि हम स्टूडेंट्स की जो मैथमेटिकल थिंकिंग है उसको इम्प्रूव कर सकें, स्टूडेंट्स की थिंकिंग को प्रोवोक कर सकें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिटिकली और मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मैथमेटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व हो, ना कि हम उसमें ये देखें कि उनका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि आंसर्स जो हैं हमारे क्वेश्चंस के वो सही या गलत नहीं होते। जितना बच्चे की अंडरस्टैंडिंग होगी, जितना उस बच्चे की थिंकिंग होगी, वो आपको उस हिसाब से ही जवाब देगा। कोई भी स्टूडेंट आपको वो जवाब नहीं दे सकता जो आपके माइंड में, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है या उसकी थिंकिंग एबिलिटी आपसे डिफरेंट है। तो ये वही वाली बात है यहाँ पे कि वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन्स पर्सपेक्टिव और ओपिनियन। तो जब आप डिबेट अपनी क्लास में आप डिबेट्स करवाएं, अपनी मैथ क्लासरूम में जब आप डिबेट्स को इनकॉर्पोरेट करें तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को आप पहले ही बता दें, उनको ये फील करवा दें कि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन या किसी भी स्टेटमेंट का जो आंसर है वो सही या गलत नहीं है, हर आंसर सही है और हर आंसर एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है अपने स्टूडेंट्स की, और उनकी मैथमेटिकल थिंकिंग चेक करनी है। और एक छोटा सा एनालिसिस ये टीचर का भी हो जाता है कि टीचर को पता चल जाता है कि अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट किसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिफरेंटली बता रहा है या उसने गलत बताया, तो या ये बच्चा इस पॉइंट पे कंफ्यूज है, या मेरी इस बात को बच्चों ने थोड़े डिफरेंट अंदाज से लिया है, वो कंफ्यूज हो गए, या उन्होंने मेरा पॉइंट उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया जो मैं समझाना चाह रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस टीचर का भी हो जाता है जो आपने पढ़ाया है, तो आप उस चीज़ को फिर ऑब्वियसली अपनी क्लास में रिपीट भी कर सकते हैं और उस चीज़ का बच्चों को रिवीजन भी करवा सकते हैं। Here we take a 5 or 10 minutes break for namaz and then we'll continue. Okay, this is another way to start a discussion in your classroom, which is which one doesn't belong. So you can give three
to 4 questions. Basically, this is compare and contrast type activity, जिसमें स्टूडेंट्स जो है इसको डिफरेंट एंगल से आपकी गिवन प्रॉब्लम पे अ, सोचेंगे और फिर उसमें से आपको उसका आंसर देंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो, अगर आपने 4 उनको ग्राफ्स दिए हैं या 4 नंबर दिए हैं, तो वो 3 पे डिस्कस कर रहे होते हैं और चौथे पे नहीं कर रहे होते। अगर ऐसा हो कि आपने 4 ऑप्शन दिए और स्टूडेंट ने उनमें से किसी 2 या 3 ऑप्शंस को डिस्कस किया है और किसको कोई ऑप्शन ऐसा है जिसे किसी स्टूडेंट ने डिस्कस नहीं किया है, तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन रेज करेंगे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में भी सोचें। राइट, जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर गिवन है, 43, 25, 16 एंड 9। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि विच वन डजेंट बिलोंग। सो माई क्लेम इज दैट 16 will not belong because 16 is an even number and rest of the 3 numbers are odd numbers, right? तो जैसे मैंने इस वे में सोचा इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट में, हो सकता है कोई स्टूडेंट इसको मल्टीपल्स की फॉर्म में जाके सोच रहा हो। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि 43 डजेंट बिलोंग, राइट, क्योंकि 25 जो है फिर वारंटी हो जाएगा कि 25 5 का मल्टीपल है, 9 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 16 4 का भी मल्टीपल है, 8 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है। लेकिन 43 किसी भी नंबर का मल्टीपल नहीं है। तो आप इसको इस वे में भी ले सकते हैं कि 43 बिलोंग नहीं करेगा। सी, क्वेश्चन मेरे पास एक ही है, एग्जाम्पल मैं आपको एक ही दिखा रही हूँ, आंसर्स मैं आपको 2 बता रही हूँ। ठीक है, पहले मैंने क्लेम किया था 16 के लिए, उसका वारंट दिया, क्या वारंट दिया कि 16 इवन नंबर है और बाकी जो 3 नंबर है वो ऑड नंबर है। उसके बाद मैंने सेकंड क्लेम किया 43 के लिए कि 43 बिलोंग नहीं करेगा, और मेरा क्लेम क्या था कि 25, 9 और 16 जो हैं वो तीनों नंबर्स किसी ना किसी नंबर के मल्टीपल हैं, बट 43 किसी नंबर का मल्टीपल नहीं है, विच इज़ another concept. So I discussed two concepts in the same examples, right? अब आप इसको अपनी क्लास में परफॉर्म करके देखें। स्टार्ट में आप इसको गेम्स के तौर पे या स्टार्टर एक्टिविटी के तौर पे अपनी क्लासेस में स्टार्ट करके देखें, बच्चों को थोड़ा सा अवेयरनेस कराएं। एकदम से अगर आप बच्चों से डिबेट अपने मेन टॉपिक पे स्टार्ट करवा देंगे तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी आप जो है उसमें थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें, इन्हीं एग्जाम्पल्स को यूज़ कर लें, थोड़ा सा बच्चों को गाइड करें, थोड़ा सा गेम उसके एक थोड़ा गेम वाला एनवायरनमेंट बना दें स्टूडेंट्स के साथ कि भाई मैं स्टेटमेंट दूंगी, आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन मुझसे एग्री करता है, कौन कौन डिसएग्री करता है। फिर आप उनसे ये पूछ लें कि भाई आप मुझसे क्यों एग्री कर रहे हैं, आप मुझसे क्यों डिसएग्री कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बच्चों को एक आइडिया होगा। जब 1-2 बार प्रैक्टिस स्टूडेंट सारी होल क्लास आपके साथ प्रैक्टिस कर लेगी, फिर जब आप उन्हें एक सिचुएशन में डालेंगे कि वो अपने क्लासमेट्स के साथ ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं या वो एक होल क्लास डिस्कशन और डिबेट हो रही है, तो वो उनके लिए इजी होगा और वो इन्जॉय भी करेंगे। Okay, let's see a practice problem example for a class work. So, this is basically a theorem in which you can see two triangles ABD and DBC, right? और गिवन में आपसे वो ये कह रहे हैं कि जो एंगल A है
वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एंगल सी के, या एंगल सी जो है वो कंकरेंट एंगल्स हैं। तो अब यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट ऊपर है वो सब आप क्लेम करेंगे। जब आप थ्योरम सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, और राइट हैंड साइड पे आप जो है बताते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं कि वो आपने कैसे किया। तो जैसे अगर यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी अगर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, या एंगल ए और एंगल सी कंकरेंट है, तो ये चीज़ हमें ऊपर डायग्राम के साथ गिवन है। तो मेरा वारंट क्या हो जाएगा कि ये चीज़ तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद जो सेकंड वाला पॉइंट है वो भी गिवन है, राइट। तो अगर मैं बात करूं ट्रायंगल बी ए बी डी की और सी बी डी की, तो मैं कहूँ कि जो ए बी डी में बी डी है और सी बी डी में जो बी डी है वो दोनों भी कंकरेंट हैं। कैसे, या इक्वल हैं तो किस तरह से हैं, वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। फिर फोर्थ वाली की जस्टिफिकेशन है एंगल साइड एंगल, राइट। तो इस तरह से अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस में इस चीज़ को अपने क्लासरूम में अपनी कॉपी वर्क में भी ले आएंगे, तो उससे ये होगा कि बच्चे अवेयर रहेंगे इस चीज़ से। और कोशिश ये करें कि अगर आप डिबेट करवा रहे हैं क्लासरूम में तो उसको विद इन अ वीक, या अपने न्यू लेक्चर से पहले या पुराने लेक्चर के रिवीजन के लिए या प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन के लिए उसको यूज़ करते रहें। और आई वुड सजेस्ट कि आप वीक में अपने एक यूनिट तो ऐसा उसको स्पेसिफाई कर दें कि भाई इस वीक में ये वाला इस डे का जो मेरा मैथ्स का यूनिट है उसमें हम डिबेट करेंगे, चाहे वो हमारे न्यू टॉपिक से रिलेटेड हो या उसमें हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हो, या आप रिवाइज करवाना चाह रहे हो बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट, या ये चेक करना चाह रहे हो, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट लेना चाह रहे हो कि स्टूडेंट्स ने कितना किसी प्रीवियस टॉपिक को एब्जॉर्ब किया है, कितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, या उनके कॉन्सेप्ट्स कितने ज़्यादा क्लियर है, राइट। I hope you enjoyed today's session. This is all for today. I would like to wrapping up my today's session with your feedback. All I want you to do is to answer 3 or 4 questions on a Padlet wall. The first question is, you have to answer what you used to think about debates in maths uh, before attending this session, and now what you are thinking when you have attended a session, right? So before and after सेशन आपने क्या फील करते थे, आप क्या सोचते थे डिबेट्स या स्पेशली मैथ्स के सब्जेक्ट में डिबेट्स के बारे में, ये आप बताएंगे। Secondly, I would like you to answer the one thing you want to hear about, more about, need to be mentioned or are confused in whole session। क्या चीज़ या किस चीज़ से कोई एक ऐसी चीज़ जिससे आप हैरान हुए आज के सेशन में, या जिस चीज़ के बारे में आप और मज़ीद सुनना चाहते हैं, आप चाहते थे कि एक कुछ और यहाँ पे मज़ीद मेंशन होना चाहिए था, या कोई ऐसा पॉइंट जिसके बारे में आप कंफ्यूज हैं। और इसके साथ ही जो आप थर्ड क्वेश्चन का मुझे आंसर देंगे वो ये है, व्हाट कुड यू शेयर विद योर ग्रुप। आप अपने स्कूल में अपने स्टाफ में या अपने को मैथ्स टीचर्स के साथ, या अगर आप कोऑर्डिनेटर हैं तो अपने सब ऑर्डिनेट्स के साथ आज के सेशन से क्या पॉइंट्स, क्या की पॉइंट्स आप शेयर करेंगे, ज़रूर मुझे बताएं। पैडलेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि आप
ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन जो यहाँ पे मेंशन नहीं है वो बस ये है कि आप मुझे बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा और नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं कि मैथलॉजिक्स के प्लेटफॉर्म से आप मैथ से रिलेटेड और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए लेकर आएँ। इसके अलावा हमारा एक रिकॉर्डेड सेशन बेस्ड 10 वीक्स का कोर्स होने जा रहा है जो मैथमेटिकल थिंकिंग और मेकिंग सेंस पे बेस्ड करता है। उसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेशन फ्री है बट सीट्स जो हैं वो लिमिटेड है, 20 सीट्स हैं। तो अगर आप विलिंग हैं तो आज ही रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा ताकि आप ये चांस मिस ना करें। 10 वीक्स का 10 to 12 सेशन पे, रिकॉर्डेड सेशन पे बेस्ड मैथमेटिकल थिंकिंग और सेंस मेकिंग का कोर्स है और कोर्स बिल्कुल फ्री है और सर्टिफाइड कोर्स है। सो डू शेयर योर कमेंट्स और अपना फीडबैक दें ताकि आप अपना सर्टिफिकेट क्लेम कर सकें। पैडलेट का लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अपकमिंग कोर्स के रजिस्ट्रेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड attending this session. Again, if you want to get in touch with me or if you want to clarify any concept or if you have any question about today's session or any concept or a slide or activity which has been discussed in today's session, feel free to email us at logicsmatho@gmail.com or you can WhatsApp us between 4 p.m. to 11 p.m. Thank you so much once again.